Good evening, friends. Today we are going to study asset disposal account. Preparation of assets disposal account. Clear? As we are knowing, we are studying the chapter number 12, depreciations. In the previous lecture, already we have seen the methods of the introduction about the depreciations, meaning, features, and second lecture SLM, the methods of charging depreciation. First method is straight line method. In the second lecture, in the third lecture WDV, we have seen WDV in the third lecture, and methods of recording depreciations in fourth lecture. You can go and watch all the videos in my playlist class 11th accounts. Okay, my dear students. So today we are going to study preparation of asset disposal account. Okay, my dear students, asset disposal account. Okay, asset disposal account. What do you mean by asset disposal account? When any assets or any part of the assets, if we are selling in the life of the assets, ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब मेरे ये है कि कोई भी assets और या यदि कोई उसका पार्ट हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जब बेचेंगे तो उसका एक अलग अकाउंट खोल लेंगे. क्या लिखा है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट मीन्स एट दैट टाइम वट एवर अकाउंट वी विल shown the disposing process of the assets, where will be shown that will be asset disposal account. गड़ी वाला मीन्स एक साफ शब्दों में या कॉमन सेंस में अगर हम बात बोले तो किसी भी एसेट्स को अगर हम बेच रहे हैं या किसी भी पार्ट ऑफ एसेट्स को हम बेच रहे हैं, तो उस बेचने के लिए, उसके डिस्पोजिंग ऑफ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम एक ऐसा अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम क्या है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसी अकाउंट को खोल के हम क्या करते हैं, बेचते हैं. अब यहां से जो रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, देयर आर टू वेज. ओके, सो फर्स्ट वे इज इफ वी आर मेंटेनिंग provision for if we are not maintaining, if we are not maintaining provisions for depreciation account, okay, methods of recording depreciations we can record by two ways. First one is if we are not maintaining provisions for depreciation account, and second one is if we are maintaining provisions for depreciation account. Clear? If we are not maintaining, if we are maintaining, what entry we will do under both process? First, if we are maintaining if we are maintaining provisions for depreciation account, then what we will do? We will open two accounts. First one is plant and machinery account, यानी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, whatever fixed assets on which we are charging depreciations, and second one is asset disposal account. This account when we will open when we will dispose of the assets. ये अकाउंट तब हम खोलेंगे जब हम किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स को क्या करेंगे, या एसेट्स के पार्ट को हम जब डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल आउट करेंगे. क्लियर?
तो in this case, when we are not maintaining provision for depreciation account, we will open two accounts. First one is plant and machinery account, and second one is asset disposal account. Is it clear? Okay. So, what entry will be done? What accounting treatment will be done? Clear? We will pass the journal entry in both cases. Okay. And when we will pass the journal entry, you can easily open the account. Getting it, Waller? So, listen. When we will purchase the assets, we will pass the same journal. जब हम assets खरीदेंगे तो हम same journal entry, पहली journal entry मेरी वही होगी क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग हो गई. डेप्रिसिएशन चार्ज करने की सेम एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट. ये इसी में दिखा देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ध्यान रखिएगा, इस केस में हम बस दो ही अकाउंट बनाएंगे. पहला क्या है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और दूसरा क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट. इसमें हम प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, अब देखिए हम एंट्री क्या करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सारी खरीदेंगे, जैसा हम करते हैं फर्स्ट मेथड में. याद करिएगा एसएलएम में जैसा करते हैं उसी में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे. टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन, टू बाय बैलेंस ईडी, फिर टू बैलेंस ईडी, फिर बाय डेप्रिसिएशन. मशीनरी अकाउंट में हम सेम चीज करते जाएंगे. लेकिन बट व्हेन वी विल डिस्पोज ऑफ, मान लीजिए तीसरे साल में हम इस एसेट्स को बेच दिए, थर्ड ईयर में हम इस एसेट्स को बेच दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एसेट्स को. तो जिस साल हम वो एसेट्स बेचेंगे बस उसी टाइम का हम क्या बना रहे हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट. तो जिस साल हम एसेट बेचेंगे, व्हेन वी विल सोल्ड टू दैट पर्टिकुलर एसेट्स, देन वी विल ओपन द व्हाट? एसेट डिस्पोजल अकाउंट. अगर हम उस एसेट्स को सेल आउट नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो हम बस केवल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोलेंगे. ठीक है ना? लेकिन जब हम उसको उसकी एस्टिमेटेड लाइफ में क्या कर रहे हैं? उस एसेट्स को बेच रहे हैं, तो देन हम क्या करेंगे? हमको एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलना पड़ेगा. क्लियर? क्योंकि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है फ्रॉम द रिलेटेड टू द disposing of assets, we have to pass through asset disposal account. Getting you all are? Hope you all are getting. Okay? तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट जिस ईयर में करेंगे उस ईयर में ये एंट्रियां होंगी. ध्यान रखिए. क्लियर? कुछ एंट्रियां होंगी, आप इसको ध्यान से रखिएगा. पहला केस क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट. एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. क्लियर? अब जो भी एसेट्स का बैलेंस होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जो भी एसेट्स का बैलेंस होगा उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सारी कार्रवाई बंद. जिस डेट को हम एसेट्स बेचने जा रहे हैं उस डेट के बाद क्या होगा? सारी एक्टिविटी कहां होगी? सारी ट्रीटमेंट कहां होगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में होगा. क्लियर? तो देखिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, हम क्या करेंगे? एसेट्स को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? अब हम एसेट्स को बेचेंगे. दूसरी एंट्री, एसेट को हम ट्रांसफर कर दिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट में. फिर हम क्या करेंगे? हम उस एसेट्स को बेच देंगे या डिस्पोज ऑफ कर देंगे. डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं मतलब बेचना ही होगा. पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट. अब जो पैसा आएगा वो कहां आएगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आएगा. क्लियर? जो पैसा आएगा वो कहां आएगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. तीसरा,
इन द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर हमको बेचने में इस एसेट्स को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, और लॉस होगा तो ये एंट्री उलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। इन द केस ऑफ प्रॉफिट और इन द केस ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर, एसेट डिस्पोजल E/D मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 2, व्हेन वी आर मेंटेनिंग द प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो सेम प्रोसेस होगा, लेकिन इन दिस कंडीशंस वी विल ओपन 3 अकाउंट्स। पहला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सेकेंड वन इज provision for depreciation account, and third one is asset disposal account. क्लियर, यहाँ 3 अकाउंट बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर, किसी को कोई परेशानी? डेफिनेटली नहीं, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से 3 एंट्रियां करेंगे। अब देखिए, पहली एंट्री इसमें क्या होगी, 3 अकाउंट खोलेंगे, इसमें पहली एंट्री क्या होगी, सेम प्रोसीडिंग, हम जो एंट्री यहां की है उस एसेट्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहां पे सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, ठीक है, खरीद खिलाए। लेकिन डेप्रिसिएशन हम क्या चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। हम डेप्रिसिएशन यहां नहीं चार्ज करेंगे, जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में करेंगे। क्लियर। अब मेरी पहली एंट्री सेम, जब हम जिस एसेट्स को जिस दिन बेच रहे हैं वहां पे मुझे तीसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री कि जो एसेट्स की उस डेट को जो भी बुक वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, उस एसेट्स की बुक वैल्यू उस दिन जो भी होगी उसको हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू से ट्रांसफर कर देंगे इस एंट्री की तरह। एंट्री क्या होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी फिक्स एसेट्स होगा फिक्स एसेट्स अकाउंट लिख देंगे पहली एंट्री। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री यहां पे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो भी डेप्रिसिएशन हमने जिस उस अकाउंट में कलेक्ट करके रखा है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट व्हेन वी विल मेंटेन, देन वी विल कलेक्ट ऑल द अमाउंट इन विच अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। समझ में आया, मतलब जो हम डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट है हम कहां कलेक्ट करते हैं, जब हम मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो हम जो डेप्रिसिएशन जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन काट के रखे हैं उसको हमको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये दूसरी एंट्री जो इस कंडीशन में नहीं होगी, इस कंडीशन में की जाएगी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तीसरी एंट्री सेम प्रोसीडिंग, फिर हम एसेट्स को बेच देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फिर चौथा प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स हो गई। पांचवा इन द केस ऑफ लॉस प्रॉफिट पीएल डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इस तरीके से हम अकाउंटिंग को प्रोसीड करेंगे। अब मैंने जनरल एंट्री कर दिया, इसकी पोस्टिंग हम कर सकते हैं कहां पे, अब उसके अकाउंट में हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलेंगे। तो देख लीजिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम खोल दे रहे हैं आपके सामने। टू फिक्स एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू आ गई टू फिक्स एसेट्स। सपोज फिक्स एसेट्स की वैल्यू निकल के आ रही है 1 लाख रुपए सपोज। ओके, हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन काटा कितना, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, सोचो 30,000 डेप्रिसिएशन काटा है, वो ट्रांसफर हो गया बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। टू हमने बेचा है क्या, बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कैसा आएगा, कहां जाएगा, बाई बैंक। सपोज हमने इसको बेचा है कितने में, 80,000। कल वाला क्वेश्चन है, ध्यान रहे, 1 लाख का एसेट था, 10% डेप्रिसिएशन था, और हम मेंटेन भी कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड वी आर नॉट मेंटेनिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सेम वाला प्रोसीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000, बाई बैंक 80,000, ठीक। अब फिर तीसरी एंट्री देखिए, अगर अब हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 1 लाख माइनस 30,000, एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है, 70,000। क्लियर। तो यहां पे एसेट्स की, अच्छा 1 लाख आ गया, एसेट्स की बुक वैल्यू 70,000 है, हमको 70,000 के एसेट्स को वी आर सेलिंग इन 80,000। क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट कितना से, 10,000 से। अकाउंट क्लोज 1,10,000, 1,10,000। ऐसे ही बस एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। क्लियर। होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से डेप्रिसिएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। अब बारी है आपकी क्वेश्चंस लगाने की। अगर क्वेश्चन लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस आप लोग कर जाइए, क्योंकि हम फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर that will be bills of exchange. So for today, thank you very much. Bye bye, good night.